Hello, students. So, we are just reading the our chapter market around us. So, our next point is chain of markets. So, chain of market, as I have given you the overview, what is the chain of market? Like producers, then traders, then wholesalers, then retailers, and then at the last consumer game. Okay, like production is being done at one place, then those things, have you ever imagined that how things come to us? Like this is the process that a thing came to us. Like firstly producer are being producer are producing the things, then traders are there, then those traders are selling to the wholesalers, and wholesalers are selling those things to the retailers, and then retailers are selling to their consumers. Okay, so that is the chain of the market. Understand? So now wholesalers are there, those they will not buy. If we'll talk about the vegetable wholesaler, they are, he or she is not going to buy only things in kilograms, like a few kilograms, like 10 kilograms or 5 kilograms, like this. If they are doing the work of a wholesaler, then they need to buy a huge amount of, yeah, huge quantity of things. Okay, because they have to sell it to the other shopkeepers, like that is why they are known as wholesalers. So this is the thing that like if we'll say the prices remain the same, no, prices will not be remaining the same, because producer, the production, wherever is production is being done, the person will include the production cost and everything over there. Okay, then they are giving it to the traders, and traders will include their profit into the cost, then they'll sell it to the wholesaler, and now wholesaler is also including their profit in the quantity, in the price. Okay, then what happened, they are selling it to the retailers, and retailers also including their own profits. So in the last, the goods came to the consumers, like to us. Okay, so this is the process of things, that how we people are getting the things. Okay, so now our next point is markets everywhere. So this point is there, markets everywhere. So market everywhere, like if we'll talk about the earlier time, the past time, so at that time what was there were the markets, if we'll talk about the traditional markets, so traditional markets were located in specific areas. Like today as well, if we'll talk about the market in the villages or any rural areas like towns, the market is situated in a specific area. Understand? And like some shops are there in your neighborhood. Okay, like we have read the three kinds of market. First one is shops, weekly market, then neighborhood market, and the third one is shopping malls and complexes. Okay, so जो ये neighborhood markets हैं, we are getting the things from there of our daily use. Understand? So all these things will be इन अ स्पेसिफिक एरिया. अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो मार्केट क्या थे, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते थे, उसी एरिया में ही रहते थे. गेट इट? सो बट नाउ डेज you will see market everywhere. How? If you are living on the first or second floor of your building, and in your building also you will find some shops which are known as shops in neighborhood. Okay, so we can say today's scenario is this, that market is everywhere. Understand? So like those market which were in the traditional market, what was the thing that in traditional market, the work will be done by the shopkeepers and everyone in a particular manner, or
इन अ स्पेसिफिक टाइम. लाइक अभी जो हम देखेंगे कि मार्केट ओपन होने का टाइम है 9 AM, सो द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट विल बी एट इन द इवनिंग 6 or 7 PM. So in the traditional market it was there, okay, a time restriction was there. But nowadays what we are watching or we are seeing that market you can buy anything anytime at anywhere. Okay, if we'll talk about the online market, the market is just a one click away from you people. If you want something but it's night time, so you cannot go outside, but you will go on the online shopping. Understand? That is like Flipkart, Amazon, all these sites are there. You can buy anything just with your one click without leaving your house, right? So whenever if you are sitting somewhere far away areas but you want something at urgent basis, but you didn't have time to go out and to buy the things or to bargain with the shopkeepers and all, you can go, you will easily go to these sites and you will get things easily. Okay, but earlier it was, there was a time when it was a time consuming process, but nowadays it is very simple. Understand? Just one click and everything is in front of you. Okay, now if we'll see that market is everywhere. Okay, today's the time is market is everywhere. But if we'll go and buy a smart TV, okay, so we are just watching the shops which are on the front foot. Like if we want a TV, then we'll go to a TV shop and we'll buy the TV from there. If we want a fridge, then we'll go to a fridge shop and buy a fridge. So that is the front foot of the market. Like the main shops are known as the front foot of the market. But have you ever imagined that the things which are being installed in certain things, like in television or in fridge, there some motors are there and something, some wires, everything, those are being placed internally in those things. Okay, तो उन सारी चीज़ों का भी तो मार्केट होता होगा ना. कहाँ कहाँ पे वायर्स बनती हैं, कहाँ पे कोई स्मार्ट टीवी है तो उसकी जो स्क्रीन है वो कहाँ पे बनेगी, उसके अंदर जो कलर्स कैसे आते हैं, उसके अंदर जो वो कलर के लिए कोई मशीन होगी वो कैसे इंस्टॉल होगी. तो ये सारी हर एक जगह पे ये अलग अलग पार्ट्स बनते हैं अलग अलग शॉप्स के ऊपर, राइट. सो अब इन अलग अलग शॉप्स के ऊपर ये पार्ट्स बनेंगे. तो ये क्या है, उन पार्ट्स को कहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट करके जो टीवी प्रोड्यूसर हैं, दे आर जस्ट बाइंग थिंग्स फ्रॉम एवरी मार्केट. जहाँ पे जो भी मार्केट है वहाँ से दे आर जस्ट बाइंग द थिंग्स. एंड उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो टीवी को इंस्टॉल कर देते हैं. बट वी आर नॉट एबल टू वॉच. ओके, हम लोगों को नहीं पता है कहाँ पे कौन सी चीज़ बन रही है. हु इज़ नोइंग दिस? सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस प्रोफेशन में हैं, लाइक द जो टीवी की प्रोडक्शन करते हैं. हमें तो नहीं मालूम कहाँ से आपको क्या लेके आना है टीवी इंस्टॉल करने के लिए. या अगर हम बात करें कि हमें एक कार चाहिए तो कार हम कहाँ से लेते हैं, शोरूम से लेते हैं ना. उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसके, वो तो हम इंस्टॉल नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम मार्केट से जाके पार्ट्स ख़रीद के ले आते हैं उसके कार के और हम सारी पूरी फैमिली बैठ के, या टीवी की पूरी हम लोग टीवी को लेके पार्ट्स ले आए हैं उसके और पूरी फैमिली बैठ के उसको इंस्टॉल कर रहे हैं. ऐसा हम लोग नहीं करते बिकॉज वी डोंट नो, राइट. हम लोगों के पास कुछ ऐसी मार्केट्स हैं विच आर सीन एंड कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जो अनसीन रहती हैं जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है. ओके, हम लोग सिर्फ किनको जानते हैं, जिन जो शोरूम्स हैं या जो शॉप्स हैं जहाँ से हमें इजीली हम लोग गए और हमें बोला कि वी वांट दिस स्मार्टफोन, वी वांट अ स्मार्टफोन, वी वेंट टू अ स्मार्टफोन शॉप एंड वी बाय फ्रॉम देयर. ओके, देन केम बैक टू होम. अब उस स्मार्टफोन के अंदर अंदर क्या क्या है वो हमें नहीं मालूम, और वो कहाँ कहाँ से अवेलेबल होता है दैट ऑल्सो वी डोंट नो. सो हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद द फ्रंट फुट मार्केट. ओके, जो बैक फुट पे मार्केट है वो हमें मालूम ही नहीं है. सो ओके, सो इसीलिए
कहा जाता है कि कुछ मार्केट ऐसी हैं जो जिनके बारे में हम अवेयर हैं, बट देयर आर सर्टेन मार्केट्स विच आर बीन वी आर फ्रॉम देम वी आर अनअवेयर. ओके, so we can say today's scenario is this, that market is everywhere. Get that? I hope you understood the market everywhere. So next point is market and equality. क्या सारे मार्केट सेम होते हैं या उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं? सभी मार्केट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते हैं, तो अब वो क्या वेरीज करते हैं कि मीन्स, अब सबसे पहले इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है, डज मार्केट हैव इक्वालिटी? क्या आप बोल सकते हो कि मार्केट्स में इक्वालिटी है? व्हाट डू यू थिंक, दैट मार्केट डू हैव इक्वालिटी और नॉट? So this is our big issue. So we'll say that markets में equality नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर चीज़ का मार्केट है और हर चीज़ का अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग थिंग्स हैं, तो मार्केट में इक्वालिटी नहीं है और ना ही कुछ भी वहाँ पे इक्वल बेसिस पे होता है. क्योंकि जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं वो उनकी अर्निंग और जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनकी अर्निंग, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. लाइक शॉपिंग मॉल्स में हमने पढ़ा था कि ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, जो ये स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनके पास ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं होते. वो 100 रुपीज़ में टी शर्ट दे रहे हैं, 100 रुपीज़ में स्कर्ट दे रहे हैं. लेकिन अगर वही सेम चीज़ आप लेने जाओगे, ब्रांडेड चीज़ लेने जाओगे, तो दैट विल बी ऑफ 2000 3000. सो अब जो स्मॉल वेंडर है वो पर डे 10 to 20 थिंग्स सेल करेगा, तब जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी इक्वली पहुंच पाएगा अर्निंग में. वो तो एक चीज़ सेल कर लें तब उनकी 3000 4000 ऐसी अर्निंग आ जाती है. लेकिन जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनको तो काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, तब उनके 3 to 4000 बनते हैं. तो वी कैन से दैट मार्केट्स में इक्वालिटी नहीं होती है. ये डिपेंड करता है मार्केट में आपकी शॉप का साइज़ क्या है, आपने उसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ क्या दी हैं, और ये क्यों है ऐसा कि आपकी अर्निंग कितनी है उसमें. तो ये सब डिपेंड करती हैं कि मार्केट में इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है. तो इनइक्वालिटी कैसे है? लाइक फर्स्ट होता है कैपिटल इन्वेस्टेड. कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब आपने कितना पैसा लगा के अपनी शॉप को शुरू किया है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी मनी होती है, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग दैट मनी एंड दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर स्मॉल शॉप्स. Okay, on the other hand, if we'll see there is a person who is blessed with a lot of money, that person will invest that money, and he or she will open an shopping mall. ओके, सो अब क्या है, उसमें शॉपिंग मॉल ओपन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है. ठीक है, तो अब वो जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस उसने किए हैं, प्लस उसको वर्कर्स की भी रिक्वायरमेंट है, उनके ऊपर भी मनी इन्वेस्ट करेगा. अब स्मॉल शॉप है तो 1 person कैन हैंडल दैट. सो इसीलिए क्या है कि वो डिपेंड करता है कि कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है, कितना पैसा लगाया उन्होंने अपने बिजनेस में, और जितना पैसा लगाया है उसी के अकॉर्डिंगली उनकी अर्निंग होती है. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग का कि हमारे इस पॉइंट में कि अर्निंग कैसे होती है. अब जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनके पास कौन आएंगे? जिनके पास फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली वो इतने साउंड नहीं होते, दोज पीपल विल कम टू द स्मॉल शॉप्स. ओके, अब जिनके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, दे आर वेरी साउंड फ्रॉम फाइनेंस, देन obviously they'll go to the shopping complexes, shopping malls, and they'll buy expensive things. जिनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है वो तो कुछ भी बाय कर सकते हैं. अब जो पर्सन है जिसके पास उसको अपना सब कुछ ध्यान में रख के चलना है, देन दे पीपल विल गो टू स्मॉल शॉप्स और वो उसी के अकॉर्डिंगली बाय करेंगे जैसी उनकी इनकम है. अंडरस्टैंड? सो अब यहाँ पे बायर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है उनके प्रॉफिट्स का. अब जो स्मॉल वेंडर हैं, स्मॉल बायर्स जाएंगे उनके पास. जो बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे अच्छे लोग जाएंगे, मींस अच्छे इन द सेंस जो फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छे हैं वो लोग जाएंगे. तो यहाँ पे अर्निंग हो गई डिफ्रेंशिएट. जो महंगे कपड़े हैं वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से ले रहे हैं, तो इसीलिए वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पर्सन की अर्निंग ज़्यादा है, और जो यहाँ पे स्मॉल वेंडर्स हैं उनकी
की अर्निंग कम है। ओके, और नेक्स्ट ये है कि उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, कि क्या प्रॉफिट जैसे बायर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली उनका प्रॉफिट होगा। सो दिस शोज द इनइक्वालिटी इन द मार्केट। सो ओके, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मनी मेड मनी। अब जो पर्सन जितने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में उतनी ही ज़्यादा वो मनी मेक करता है। सो यही है कि और जो ये हमारी चेन ऑफ मार्केट है, लाइक producer, traders, wholesaler and retailers, they produce opportunities as well. Opportunities कैसे, like they are just generating job opportunities. अब वो jobs आ रही हैं तो पर्सन क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट ग्रैबिंग द जॉब्स। अब जॉब्स जिसको मिलेगी तो वो अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएगा। सो दीज आर द थिंग्स which is given in your chapter. I hope you have understood this chapter and we have completed our this chapter. We'll discuss over the question answers by tomorrow. Take care. Bye.